Hello students, spectroscopy, new chapter. It is a interaction of electromagnetic radiation is called as spectroscopy. Then in spectroscopy having electromagnetic spectrum, the energy which travel in the form of waves. The energy which travel in the form of waves, then it is known as a electromagnetic radiation. Energy travel in the form of waves, it is called as electromagnetic waves. Look this students, the graph between the intensity of absorption and lambda wavelength lambda. Towards right hand side, bathochromic shift. Therefore bathochromic shift means increase wavelength, and towards the left hand side, hypsochromic shift means decrease wavelength, and right hand side, bathochromic shift means increase wavelength. Look at the front, hyperchromic shift, intensity of absorption band is increased, therefore increase the intensity of absorption band, then it is known as a hyperchromic shift. It is a hyperchromic shift. Then last point, hypochromic shift. Now decrease intensity of absorption band or reduce the intensity of absorption band, then it is known as a hypochromic shift. First definition, bathochromic shift, absorption band is shifted towards the longer wavelength. Absorption band shifted towards the longer wavelength, then it is known as a bathochromic shift. It is known as a bathochromic shift. The wavelength in a nanometer. Wavelength in a nanometer unit. Then next, hypsochromic shift. Hypsochromic shift means absorption band shifted towards the shorter wavelength. Absorption band shifted towards the shorter wavelength, then it is known as a hypsochromic shift. Then it is known as a hypsochromic shift. Next point, hyperchromic shift. Hyperchromic shift means increase intensity of absorption band. Increase intensity of absorption band, then it is known as a hyperchromic shift. Then it is known as a hyperchromic shift. And last, hypochromic shift. Hypochromic shift means decrease intensity of absorption band. Decrease intensity of absorption band, then it is known as a hypochromic shift. Now next students, chromophore. Chromophore, it is a unsaturated functional group. It is a unsaturated functional group which having presence of C double bond O group, carbonyl. Then carbon carbon double bond, nitrogen double bond nitrogen. It is an example of chromophore. It is a unsaturated functional group which are responsible for absorption of UV radiation. Which are responsible for absorption of UV radiation. Carbon carbon double bond O, nitrogen double bond nitrogen. It is a unsaturated compound which are responsible for absorption of UV radiation. Then it is known as a chromophore. Chromophore interaction. A chromophore interaction, when two or chromophore are attached in the form of consecutive double bond. ये chromophore अटैच होंगे, टू और मोर chromophore अटैच रहेंगे in a conjugated manner, alternate manner.
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, तो इसमें extended the conjugation takes place towards the longer wavelength, then we observe the bathochromic shift. इसमें क्या मिलेगी? bathochromic shift. The chromophore interaction gives bathochromic shift because it absorbs towards the longer wavelength. तो longer wavelength आ गई तो कौन सी शिफ्ट आएगी? bathochromic shift. एग्जाम्पल ethene having carbon double bond, carbon, only one double bond present, therefore lambda maximum value 171 nanometer. But in 1-butadiene there are chromophore interaction, conjugated double bond present, then one conjugated double bond increase about the lambda maximum value also increase 30 to 35, then it gives the lambda maximum value 217 nanometer. हम लोग को इथिन में क्या मिली? 171 नैनोमीटर मिल गई. हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल लिया 1 2 3 4 कार्बन वाला लिया 1,3-ब्यूटाडाइन, तो हम लोग को उसमें क्या मिली? वेवलेंथ 217 नैनोमीटर. तो इससे इथिन से इंक्रीज हो गई लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ चली जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन. 6 कार्बन, देन इसका नाम क्या रहेगा? 1 पोजिशन डबल बॉन्ड, 3 पोजिशन डबल बॉन्ड, 5 पोजिशन डबल बॉन्ड. तो इसका नाम क्या रहेगा? हेक्सा 1,3,5 ट्राइन. तो इसमें क्या है? कंजुगेट डबल बॉन्ड. तो इसमें लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई. तो आप लोगों को लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 256. क्या मिलेगी? 256 लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू. तो लॉन्गर वेवलेंथ हो गई. तो इसमें क्या आएगी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट. इसमें क्या आ गई? बैथोक्रोमिक शिफ्ट. जब इथिन था उसमें 1 डबल बॉन्ड था, ब्यूटाडाइन लिया 2 डबल बॉन्ड आ गए, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड आ गए, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हुआ तो लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू बढ़ गई. उसके बाद थर्ड इसमें तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, टोटल 3 है, तो इसके लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 256. तो इसे बोलते हैं क्रोमोफोर इंट्रैक्शन. देखो स्टूडेंट्स, ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है. इसमें 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव बॉन्ड है. तो इसमें 11 कंजुगेटेड बॉन्ड रहेगा तो जैसे एक एक डबल बॉन्ड बढ़ते जाएगा तो लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू 30 से इंक्रीज होती जाएगी. तो इसमें जब बीटा कैरोटीन में 11 कंजुगेटेड बॉन्ड है इसलिए इसमें 478 नैनोमीटर तक वेवलेंथ आएगी. तो इसमें क्या हो गया? एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट है. तो इसमें जब आप लोग देखोगे तो कैरोट हैविंग कैरोटीन प्रेजेंट, देन इट अपीयर द ऑरेंज कलर. तो इसमें ये किसका एग्जांपल है? क्रोमोफोर इंट्रैक्शन का. तो बीटा जो कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन विच हैविंग 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड and 11 conjugated bond, presence of 11 conjugated bond, the absorption band shifted towards the longer wavelength because it having extended conjugation, and beta carotene having the carrot give the orange color. Next, oxochrome. The oxochrome is any group which do not absorb UV radiation, any UV radiation, but presence of this oxochrome group in the any compound which shift the absorption bands towards the longer wavelength. जैसे ये ऑक्सोक्रोम है, ये यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन ये जब प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड में तो ये क्या करेगा? इट ब्रिंग, कंपाउंड को ब्रिंग करेगा टू मूव्स टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, और ये एब्जॉर्ब क्या करेगा? लॉन्गर वेवलेंथ.
लॉन्गर वेवलेंथ आ गई तो क्या आएगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो जो आप लोगों के एग्जाम्पल है ऑक्सोक्रोम के, वो OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, OR ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सोक्रोम। OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। ये किसके एग्जाम्पल है, ऑक्सोक्रोम में। ऐसे क्रोमोन ग्रुप आ गए ऑक्सोक्रोम वाले क्रोमोफोर के साथ, तो क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम इंट्रैक्शन होएगा और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी। तो क्योंकि एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे। नाइट्रोबेंजीन है, उसमें वेवलेंथ है 270 नैनोमीटर। कितनी वेवलेंथ है, 270 नैनोमीटर। लेकिन हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल लिया पैरानाइट्रो एनिलीन वाला। तो इसमें क्या होता है, NH2 ग्रुप है, ऑक्सोक्रोम है, तो इसमें क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम का इंट्रैक्शन होएगा। देखो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल गया, NH2 से इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम्स। इसके बाद ये देखो ये, तो इसमें क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया और शिफ्टिंग होएगी, बिकॉज एब्सॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ हो गई, शिफ्ट टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ हो गई। तो इसमें क्या आएगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होएगी। और जो हम लोग को पैरानाइट्रो एनिलीन है, उसमें मैक्सिमम लैम्बडा कितनी मिलेगी, 381 नैनोमीटर। तो हम लोग कितनी मिलेगी, 381 नैनोमीटर। तो ये किसका एग्जांपल है, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम इंट्रैक्शन का। तो इसमें क्या हो गया, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया। एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ गया तो आप लोग देखोगे तो इसमें लैम्बडा मैक्सिमम क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है। तो इसमें आप लोग देखोगे तो इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये N, ये O माइनस, इधर NH2 हो गया और ये प्लस। तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल कंजुगेशन हो गया, तो लैम्बडा मैक्सिमम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वो कितना आ गई, 381 नैनोमीटर। तो इसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, जो अमीनो ग्रुप यूज़ किया है हम लोगों ने, ऑक्सोक्रोम वाला है। तो ये इसमें ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर का इंट्रैक्शन होता है और वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसे बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। वन मोर एग्जांपल, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजीन है। इट इज़ अ कलरलेस कंपाउंड है। तो बेंजीन में ये किसका काम करेगा, क्रोमोफोर का। जब इसमें NO2 ग्रुप अटैच किया हम लोगों ने, क्योंकि ये क्रोमोफोर है, तो हम लोगों ने पहले जो बेंजीन था उसमें 203 नैनोमीटर था इसका वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ क्या था, 203 नैनोमीटर। जब हम लोगों ने यूज़ किया नाइट्रोबेंजीन, मीन्स NO2 ग्रुप अटैच किया, क्रोमोफोर इंट्रैक्शन, तो क्रोमोफोर इंट्रैक्शन किया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा। आप लोगों की ये वैल्यू कितनी थी, 203 नैनोमीटर थी। और जो हम लोगों ने नाइट्रोबेंजीन था तो उसकी वैल्यू कितनी है, 270 नैनोमीटर। तो इसमें क्या आ गया, क्रोमोफोर इंट्रैक्शन आ गया, तो एब्सॉर्प्शन बैंड शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्गर हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्रोमोफोर इंट्रैक्शन किया, तो इसमें और वो बढ़ गई, वो कितने आ गई, 381। तो इसमें क्या हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ वेवलेंथ हो रही है टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, उसे बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो आप लोगों को कलर दिखाई देगा। तो पहले इसमें बेंजीन कलरलेस था, उसके बाद NO2 ग्रुप अटैच हुआ तो क्रोमोफोर इंट्रैक्शन होगा, तो इसमें हम लोग को पेल येलो कलर मिला नाइट्रोबेंजीन का। उसके बाद फिर से हम लोगों ने ऑक्सोक्रोम अटैच किया NH2 ग्रुप, तो हम लोगों को इसका कलर क्या मिला, डीप येलो कलर। इसका नाम है पैरानाइट्रो एनिलीन। तो इसमें क्या हो गया, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हुआ, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। और इसमें क्या हो गया, पाई स्टार इंट्रैक्शन हो गया। इसमें क्या हो गया, पाई स्टार इंट्रैक्शन ट्रांजिशन।